Hello everyone, welcome to Seeds of Physics. How are you all? Chalo, let's go ahead and solve few more questions on graphs. Right now, you can see 4 questions on the board. Now, at the first glance, you might see that these are normal non-linear shapes that we have already discussed many times in our past videos. But these graphs are slightly different from the ones that we have discussed. See, in these graphs, the values for which the graph is plotted, the values which are chosen on the y-axis, they are all negative. That means we have talked about non-linear graphs where the velocities that we have chosen were positive. But this is the first time when we are discussing the non-linear graphs for negative values of the physical quantities which are chosen on the y-axis. So let's just start. They are interesting. See, we are first of all going to talk about the graph number A, which is marked as A. In this graph, what is happening? You can see a shape of this kind. Very easily you can see a shape of this kind. And this graph is for negative values of velocities. For negative values of velocities, if there is a graph, what first thing comes in your mind as per the convention which is adopted? The first thing that clicks your mind is that the object is approaching the starting point. That means the object is approaching it is moving towards the point from where it actually started its journey. So it is approaching the starting point because the velocities are negative, and this fact is going to be true for all the graphs which are shown here because all are drawn for negative values of velocities. So first conclusion that we draw from this graph is that the object is approaching the starting point. Then what is happening? You can see on the time axis, time as always it is progressive. We are progressing in time and we are getting some variation in the velocity. So second thing that we can talk about about velocities is that the velocity is a variable velocity. It is not showing any constant velocity sketch. It is not a constant velocity thing. So the first thing was that objects are approaching the starting point. The second thing is that velocities are variable. So it's a variable velocity curve. चलिए देखिए, I have written all the important conclusions on the board so that you can understand easily. पहला मैंने आपको बताया था objects are approaching the starting point. वो कहां से पता चला? Velocities आपकी negative है. दूसरा वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ है. ये तो बहुत ही इजी बात है बताने वाली. इस ग्राफ को देख के कोई भी जिसने काफी ग्राफ्स कर लिए हैं वो ये तो बता ही सकता है कि ये ग्राफ्स वेरिएबल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज आपके पास साफ सी बात है, टाइम के साथ वेरिएशन आ रही है वेलोसिटी की वैल्यू में. फॉर एवरी न्यू वैल्यू ऑफ टाइम यू आर गेटिंग अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. फॉर अनदर वैल्यू ऑफ टाइम यू आर गेटिंग अनदर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. दैट मींस वेलोसिटीज में आपको क्लियर कट साइड वेरिएशन दिख रहा है. तो ये आपका एक वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ है. दैट इज समथिंग वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ. एंड थर्ड पॉइंट, स्विचिंग टू एक्सेलरेशंस. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0. देखिए सिंपल सी बात है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए देयर हैज टू बी अ वेरिएशन इन द वेलोसिटी. चाहे वो वेलोसिटी का वेरिएशन डायरेक्शन से आए या वो वेलोसिटी का वेरिएशन मैग्नीट्यूड से आए, बट देयर हैज टू बी अ वेरिएशन. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी में वेरिएशन तो है ही. यहां हम साफ साफ से देख सकते हैं डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही क्योंकि सभी वेलोसिटीज का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, सभी वेलोसिटीज का जो डायरेक्शन है वो इंटैक्ट है, वो सेम रह रहा है क्योंकि सभी वेलोसिटीज के साथ नेगेटिव साइन चल रहा है. मतलब ऑल द वेलोसिटीज इन द सिस्टम आर सेम, विच मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग एनी डायरेक्शन. वो अप्रोच कर रहा था स्टार्टिंग पॉइंट को, वो जर्नी के एंड तक स्टार्टिंग पॉइंट को अप्रोच ही कर रहा है, उसने बीच में कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं करी. So the acceleration in the system is just because of the change in the magnitude of the velocity. That is the speed of the object. ठीक है? तो आपके पास स्पीड में तो हमें पता है वेरिएशन आ रहा है क्योंकि हमें हर टाइम पे नया मैग्नीट्यूड मिल रहा है वेलोसिटी. आपको ये जो स्केल है उसकी वैल्यूज से क्या पता चलता है? वेलोसिटीज के स्ट्रेंथ, वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड पता चलता है. तो उसमें तो वेरिएशन है ही है. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हैज टू बी देयर इन द सिस्टम. इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. मैंने ऐसे करके इसको लिख दिया है. उसके बाद है, चलिए ये तो हमें पता चला कि एक्सेलरेशन है.
अब एक्सेलरेशन कैसी है, देखिए हमने बोला है कि एक्सेलरेशन के साथ ग्राफ से हम दो तरह के साइन निकालते हैं, या पॉजिटिव साइन निकालते हैं या नेगेटिव साइन निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन पता करना है हमें, कैसे पता चले, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन आता कैसे है। दिस इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स, बट लेट्स जस्ट say it again, that from the velocity time graph we can find the acceleration in the form of slope of the graph. velocity time graph का जो भी slope है वही उसका acceleration होता है। तो हमने अभी क्या करना है, acceleration निकालना है, और हम इसी तरह से कोई भी random time instant select कर सकते हैं। time instant के corresponding आप अपने ग्राफ के ऊपर उन्हीं selected points पर tangents को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ करा, ठीक है। अब आपको टेंजेंट को देख के एक्सेलरेशन का, देखिए यहाँ पे कोई हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई वैल्यू तो नहीं हम निकाल रहे हैं, पर हम इतना बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दैट इज समथिंग वी कैन वेरी इजीली टेल। कैसे बता सकते हैं, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है उसका स्लोप कैसा है। अगर आपके पास एक्सेलरेशन माने जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप कैसा है विद द टाइम एक्सिस, इसी तरह से बताते हैं हम। तो आपने टाइम एक्सिस के साथ चेक करना है कि जो भी आपके टेंजेंट्स आ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ एंगल आर दे मेकिंग विद द टाइम एक्सिस। इफ दे आर मेकिंग एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब जो आपके पास एक्सेलरेशन है जो कि स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है। इफ दे आर मेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल विद द टाइम एक्सिस, तो आपके पास स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी नेगेटिव। तो अब हमने यहाँ टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, इनमें से कोई भी एक टेंजेंट ले लीजिए आप। इस टेंजेंट का टाइम एक्सिस के साथ आपने इस टेंजेंट को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, यहां से आपको ये पता चलेगा कि टेंजेंट इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसका, लेट्स जस्ट रिप्रेजेंट द एंगल बाय थीटा। टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल आ रहा है इसका वो एक्यूट आ रहा है, वो 100% आप पर 90 डिग्री से कम एंगल आ रहा है। यहां से आपको इतना पता चल गया दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन which is nothing but the slope of velocity time graph is positive here because the angle which the tangents are making with the time axis, angle which is made with the time axis is an acute angle, ठीक है। तो आपके पास जब भी इस तरह का एंगल बनेगा जिससे कि acute एंगल आ जाएगा, the value of the slope will always be positive and the slope here is nothing but acceleration because it's a velocity time graph. तो acceleration आपकी पॉजिटिव आ गई है, मैंने रीजन लिख दिया, स्लोप मेकिंग एक्यूट एंगल्स विद टाइम एक्सिस। उसके बाद अब दूसरी बात यह है कि जो हमारा ये कर्व है इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ नॉन लीनियर कर्व। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो स्लोप है उसमें वेरिएशन है। दिस इज अ वेरी ओल्ड फैक्ट that we have discussed multiple times, that whenever you have a straight line you have constant slope, but here we do not have a straight line। इन सभी कर्व्स में फिलहाल जो 4 कर्व्स आपको दिख रहे हैं इसमें से कहीं पर भी आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है फिलहाल। तो जहां स्ट्रेट लाइन नहीं है वहां आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, राइट। एंड सिंस योर स्लोप इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, सो दिस मीन्स दैट एक्सेलरेशन इन द सिस्टम इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है, वो पता चला हमें कि स्लोप आपका पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन के साथ हो क्या रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंजिंग एक्सेलरेशन है। बट लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद द एक्सेलरेशन। जो वो पॉजिटिव वैल्यू है उसके साथ हो क्या रहा है। द पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन द सिस्टम इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इट इज अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। व्हाई? Because you can see that the slope which existed corresponding to time instant t1, that was comparatively steeper than the curve which existed for time instant t2। तो यहाँ आपका स्टीप है, फिर ये थोड़ा शैलो हो गया, आगे जाके और शैलो हो जाएगा, और इस इंस्टेंट तक पहुंचते पहुंचते स्लोप बिल्कुल ही पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस पे। तो मतलब एक्सेलरेशन 0 भी हो जाएगा आपका। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन को हो क्या रहा है, सिंस योर curve is becoming more and more shallow with time, more and more flat with time, you can say it is aligning itself, it is trying to align itself parallel to the time axis। that means that acceleration is now decreasing। तो ये आपका decreasing acceleration शो कर रहा है, राइट। अच्छा, यहां से हमें कुछ चीजें पता चल गई एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मतलब कि एक्सेलरेशन है।
एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव लगेगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है समय के साथ, लेकिन हमने अभी भी नेचर ऑफ एक्सेलरेशन नहीं डिस्कस करा. नेचर ऑफ एक्सेलरेशन comes from the fact that we know the fact that accelerations are of two types. Either it's a retardation, an acceleration which will try to reduce the magnitude of velocity, or it can be positive acceleration which will try to increase the magnitude of velocity. दो तरह की होती है. वो नेचर बतानी है हमें यहाँ कि क्या तरह की एक्सेलरेशन है. ये मतलब वेलोसिटीज को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सेलरेशन है या उनको वीक करने वाली एक्सेलरेशन. दैट इज समथिंग व्हिच इज येट टू बी एक्सप्लेन्ड. तो वो आप वेलोसिटी टाइम कर्व्स में बहुत इजीली बता सकते हैं. आपने सिर्फ क्या करना है, आपने एक्सेलरेशन का और वेलोसिटीज के साइन को कंपेयर करना है. देखिए वेलोसिटीज के साथ यहाँ नेगेटिव साइन है. Velocities are carrying negative sign and the sign which is associated to acceleration is positive. This data we have calculated. This is something we have concluded from the graph that the two things are carrying opposite signs. Acceleration positive and velocities are negative. जब भी acceleration का direction velocity के reverse होता है तो कैसी होती है acceleration? क्या कर रही होती है वो magnitude? What is happening? वो आपके पास वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करने वाली एक्सेलरेशन होती है. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करने वाली एक्सेलरेशन होती है. सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट इट इज रिटार्डेशन. दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग रिटार्डेशन. इट इज रिटार्डिंग बिकॉज आपके पास वेलोसिटी जैसे सपोज हमने वेलोसिटी के साथ ये डायरेक्शन ली विच इज अ नेगेटिव डायरेक्शन. वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव साइन के साथ आ रही. तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइन के साथ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट जब भी वेलोसिटी के साथ कोई एक्सेलरेशन जाएगी वो उसके मैग्नीट्यूड को वीक करे. सो इट इज रिटार्डेशन इन दिस केस, राइट. अच्छा एक और बात, ये रिटार्डेशन है, ये अगर आप साइंस को कंपेयर करके नहीं भी पता लगाना चाहते, ये ग्राफ से भी वैसे बहुत इजीली इट इज अंडरस्टैंडेबल. व्हाई? Because you can see the strength of the velocity is decreasing with time. You know, any acceleration which is resulting in decreasing strength of velocities with time, that has to be acceleration only. That has to be retardation only. Negative acceleration only. तो वो हमारी de-acceleration हो रही है, वो हमें ग्राफ को देखने से भी समझ में आ रहा है. तो आप अगर साइन को कंपेयर करके नहीं भी निकालना चाहते हैं तो आपको ग्राफ से भी दिख रही है चीज, क्योंकि आपके वेलोसिटीज का जो स्ट्रेंथ है वो समय के साथ कम होता जा रहा है. So that means the acceleration in the system has to be retardation, right? अच्छा, अब इसी ग्राफ से कुछ मिलता जुलता हमारे पास ग्राफ नंबर डी है. तो हम बी और सी डिस्कस करने से पहले डी कर लेते हैं क्योंकि डी काफी हद तक सेम है विद जस्ट वन डिफरेंस. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस डी. डी में भी क्या है, अगेन all the values of velocities are negative. That is common for all the graphs. So negative value of velocity is indicating that object is approaching the starting point. अच्छा जी, क्योंकि velocity में variation है तो acceleration has to be there in the system. Acceleration is not equal to 0. Then acceleration का sign आपका यहाँ भी for graph number D, the acceleration sign will again be positive. Why? Because if you draw tangents, ये जितने भी आप tangent draw करेंगे आप देखेंगे कि ये सब tangents जितने भी tangents हैं they will make acute angle with the time axis. इनका time axis के साथ जो angle है that is acute. तो आपके पास जो भी स्लोप आएंगे स्लोप्स की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली. स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन के साथ जो साइन चलेगा वो पॉजिटिव साइन आ जाएगा. और एक्सेलरेशन के साथ अच्छा इन दोनों का एक लौता डिफरेंस, दैट द ओनली डिफरेंस व्हिच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन ग्राफ ए एंड ग्राफ डी इज दैट acceleration value, that positive acceleration value is increasing with time. It is increasing with time. कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि अगर आप स्लोप को देखेंगे, देखिए यहां पर स्लोप का वैल्यू समय के साथ कम हो रहा था. जो कर्व था आपका, जो स्लोप था आपका, दैट वाज ट्राइंग टू फ्लैटन इटसेल्फ एज वी वर प्रोग्रेसिंग इन टाइम. पर यहां पर जो आपके पास टेंजेंट्स है दे आर टर्निंग स्टीपर एंड स्टीपर विद टाइम. तो वो स्टीप होने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा. दैट मीन्स द स्लोप इज इंक्रीजिंग. इफ द टेंजेंट इज बिकमिंग मोर स्टीपर दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द स्लोप हैज इंक्रीज्ड. सो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. सिर्फ यही फर्क है. दूसरा ये आपका रिटार्डेशन था, ये भी आपका रिटार्डेशन ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. वो आप चाहे साइन कंपेयर कर लीजिए,
क्योंकि वेलोसिटीज के साथ साइन चल रहा है नेगेटिव, एक्सेलरेशन के साथ साइन आ गया पॉजिटिव, दोनों की दिशा ऑपोजिट, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटीज के स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करेगा। ये चीज डायरेक्ट ग्राफ से भी समझ में आ रही है। As we are progressing in time, the values of velocities are decreasing. For T1 it's V1, for T2 it's V2, आगे जाके और कम, ठीक है। और इस particular time instant पे which is existing at this point where the graph is touching the time axis, यहाँ पर आपके पास velocity का value 0 भी आएगा। So this is the case of retardation where the strength of velocity is losing with time, ठीक है। So the only difference between them is that here we had the positive acceleration that we had that was decreasing with time, and here we have an increasing positive acceleration. जो आपके पास positive acceleration आ गया उसका strength समय के साथ बढ़ रहा है, right? So these were the two graphs A and D. Now let's start discussing graph number B. B में क्या है? चलिए, graph number B is indicating what? Let's try and see. See, here the velocity is negative. Velocity तो negative ही है, negative part में show करिए negative velocities है. That means the object is approaching the starting point. फिर acceleration is not equal to 0. Why not equal to 0? Because velocity is variable. There is variability in the magnitude of velocity clearly. So there has to be an acceleration in the system. Now what kind of acceleration is there? That we have to figure out. First of all, the slope is negative. आप tangents draw कीजिए at different points corresponding to different time instants that you have chosen. If you will draw these tangents and try to extend this tangent so that it touches the time axis, so that you can figure out what kind of angle it is making with the time axis, then you will figure out that these tangents will be making obtuse angle with the time axis this time. In graph number B, these tangents are making obtuse angle with the time axis, which shows that your slope is negative. Obtuse angle will give you negative slope. Negative slope means the acceleration here is carrying a negative sign. यहाँ acceleration का sign negative आएगा। उसके बाद ये जो negative sign वाली acceleration है, इसके साथ क्या हो रहा है? क्या ये constant acceleration है, पूरे जर्नी के लिए सेम रह रही है, या ये भी बदलती जा रही है? ये भी बदलती जा रही है। Why? Because this is not a straight line. अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, इसका स्लोप कांस्टेंट होता, जो भी होता, चाहे नेगेटिव होता पॉजिटिव होता, बट कांस्टेंट होता। लेकिन कांस्टेंट नहीं है, स्लोप में ही बदलाव आता जा रहा है। समय के साथ आपका स्लोप चेंज होता जा रहा है। और स्लोप के साथ हो क्या रहा है? I mean, it was more steep at point T1, then it became a little shallow, then more shallow it will be in time to come. तो इसका मतलब जो आपका एक्सेलरेशन है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, आपकी नेगेटिव साइन वाली जो एक्सेलरेशन है, उसके साथ क्या हो रहा है? दैट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, वो समय के साथ कम होती जाएगी। ओके, अब नेचर ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन किस टाइप की है, क्या कर क्या रही है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी का जो साइन है वो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन का जो साइन हमने समझा वो भी नेगेटिव आया। माने मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, दोनों एक ही दिशा में है। तो एक्सेलरेशन क्या कर सकती है? वो ऐसी वेलोसिटी के साथ उसको असिस्ट करेगी, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ने में हेल्प करेगी, राइट? तो इसका मतलब दिस इज इन नेचर अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन केस, बिकॉज इन दिस केस द वेलोसिटीज आर बीइंग स्ट्रेंथेंड with the help of the accelerating force. और वो आप ग्राफ से भी देख के पता लगा सकते हैं। आपके पास टाइम T1 पे V1 वेलोसिटी है, T2 पे V2 है, V2 V1 से बड़ी है। यहाँ पर समय के साथ वेलोसिटीज बड़ी आ रही है मैग्नीट्यूड में, चाहे उनके साथ साइन नेगेटिव है, क्योंकि साइन तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है दैट ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, नथिंग एल्स द साइन इज इंडिकेटिंग। सो otherwise if you see, we can see that with time the strength of the velocity is increasing, velocity का magnitude बढ़ता जा रहा है। तो कौन सी acceleration बढ़ा सकती है? positive acceleration, which is in nature a positive acceleration. तो भले यहाँ पे acceleration का sign हमारा negative है, लेकिन what is the nature of the acceleration? It is positive acceleration. Why? Because it is strengthening the velocities, it is speeding up the motion. Speeding up the motion, velocities are increasing, that means the motion is being speeded up, right? जैसे यहाँ पर ये दोनों केसेस ए और डी वाले जो दोनों केसेस थे, ये स्लोइंग डाउन के केसेस थे। यहाँ वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही थी। सो इन बोथ केसेस
the nature of acceleration was retardation. The motion was being slowed down. Here the motion is being speeded up, right? तो ये speeding up वाला केस है. Okay, so in graph number C, अब हम graph number C की बात कर रहे हैं. बहुत easy है ये. आप सबसे पहले कोई भी दो random time instants ले लीजिए, and at those respective time instants just choose the values of the velocities. Now what you can see that velocities are increasing. At time t1 we had v1. अच्छा जी, velocities तो आपकी increase हो ही रही है because curves are becoming steeper and steeper. उसके बाद आपके पास जो acceleration है वो negative है. उसका भी वही reason है कि जितने भी आपके tangents हैं you will see that they are making obtuse angle with the time axis. So सारा observation आपका लगभग same है. अब इकलौता जो डिफरेंस है इन दोनों कर्व्स में वो रहेगा एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग इन दिस केस. अगर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन है वो आपकी समय के साथ इंक्रीज हो रही है बिकॉज कर्व्स आर बिकमिंग स्टीपर. और नेचर ऑफ एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहाँ पे? व्हाट इज गोइंग टू बी द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का नेचर वहीं से आपको पता चल जाएगा. वेलोसिटीज आर कैरिंग नेगेटिव साइन, वेलोसिटीज कैरिंग नेगेटिव साइन, एक्सेलरेशन आल्सो कैरिंग नेगेटिव साइन. दैट मींस बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. So this has to be a positive acceleration. और वो ग्राफ से वैसे भी लग भी रहा है हमें बिकॉज जो आपकी वेलोसिटीज है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. So that means it has to be a positively accelerated system. Though acceleration is carrying a negative sign, that doesn't make a difference. But it's a positively accelerated system, right? अब दो ग्राफ्स हमने और डिस्कस करने हैं लेकिन वो नॉन लीनियर नहीं है but they are existing for negative values of velocity. Now we are going to discuss about those graphs. चलिए अब हमारे दो कर्व्स और हैं, दैट इज योर कर्व E एंड कर्व F. ये आपके स्ट्रेट लाइन कर्व्स हैं एग्जिस्टिंग फॉर नेगेटिव वेलोसिटी वैल्यूज. लेट्स डिस्कस दैट. देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स लिखे हैं. दीज आर कॉमन फॉर बोथ द ग्राफ्स. आपको दोनों ग्राफ्स में लगेगा वेलोसिटी इज नेगेटिव बिकॉज नेगेटिव पार्ट के लिए एग्जिस्ट कर रही है, सो इट इज नेगेटिव. वेलोसिटी इज वेरिएबल. दैट इज ऑल्सो वेरी इजिली ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ द ग्राफ्स that as you are progressing in time, you are getting different values of velocities. That means velocities are variable. Then if velocities are variable, that means acceleration has to be there in the system. So acceleration is not equal to 0. It is there in the system. And the point here is, which is different, which makes it different from the past graphs, is that here the acceleration is constant. I mean acceleration आपका है system में, वो 0 तो नहीं है, लेकिन वो जो भी है वो constant रहेगा. कांस्टेंट क्यों रहेगा ये आपको ग्राफ से देख के भी वेरी इजीली इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट इन बोथ द ग्राफ्स वी हैव स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस हैव कांस्टेंट स्लोप्स. सो हियर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट? इट इज नॉट चेंजिंग. एक्सेलरेशन कुछ भी हो, रिटार्डेशन हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, साइन कुछ भी हो, पर जो भी है वो कांस्टेंट रह रही है हर ग्राफ के लिए. इसके लिए भी कांस्टेंट है इसकी जो भी है, इसके लिए भी कांस्टेंट है इसकी जो भी है, right? So acceleration is constant because it's a straight line graph which is giving you constant value of slope. अब acceleration के slope जो constant है पर वो negative है, positive है, वो निकाल लेते हैं. So acceleration is negative for E. जो आपका ग्राफ नंबर E है इसमें acceleration का वैल्यू नेगेटिव है. नेगेटिव है कैसे पता चल रहा है? If you can see the slope and if you just try to figure out the angle that it is making with the time axis, that will come out to be obtuse angle. तो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है आपका ये वाला ग्राफ. इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल एक्सेलरेशन का या स्लोप का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा. उसी तरह से एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव फॉर F. जो आपका ग्राफ नंबर F है, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं यू विल सी दैट दिस इज मेकिंग एक्यूट एंगल विद द टाइम एक्सिस. दैट मींस हियर फॉर ग्राफ नंबर F द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. तो ये सिर्फ यही डिफरेंस है बेसिकली दोनों ग्राफ में. एक जगह एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक जगह आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है. अच्छा जी, इससे एक्सेलरेशन के पॉजिटिव या नेगेटिव होना, आप वेलोसिटी, आप एक्सेलरेशन के जो नेचर है, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, वो आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइंस को कंपेयर करके भी पता चल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट ग्राफ से भी बता सकते हो. अगर आप साइन को देख के करते हैं तो ग्राफ नंबर E में वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव. दोनों के साथ नेगेटिव साइन है. नेगेटिव साइन माने दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब दिस इज स्पीडिंग अप द मोशन. दिस इज स्पीडिंग अप द मोशन विच इज ट्रू इफ यू सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो. फ्रॉम द ग्राफ with different as you are progressing in time, you are seeing that the velocities are increasing in strength.
तो आपके पास ये जो केस रहेगा ये एक्चुअली में पॉजिटिव एक्सेलरेशन का रहेगा, भले एक्सेलरेशन के साथ साइन नेगेटिव है, बट दिस इज शोइंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन बिकॉज द मोशन इज बीइंग स्पीडेड अप. Here the motion is being slowed down. Why? Because at time t1 the object was traveling with v1 velocity, and at time t2 it is traveling with v2 velocity, and v2 is smaller than v1. That means now the object is slowing down. तो ये आपका रिटार्डेशन बता रहा है, और ये साइन से भी यही इंफॉर्मेशन आएगी, सेम इंफॉर्मेशन आएगी, बिकॉज आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दोनों ऑपोजिट दिशा में है, माने रिटार्ड करेंगे. Fine. So I just hope you found this video helpful. See you in the next video. Take care.